माया बेच के जमीन किन्नी पैली तू बनाई माया एक किला बेच किन्नी पैली तू बनाई बड़ी सोहनी लगदी है माया कोठी जेड़ी पाई. During the last 20 years, the Delhi region has turned into one of the world's major industrial hubs. The symbol of this development is Gurgaon, a suburb of Delhi which has evolved into a booming metropolis within the last few years. The required workforce is recruited from India's poorer regions, where survival is being made more and more difficult for the rural populace. This is why 4 to 5 million industrial workers in southern Delhi are willing to ruin their health for wages their families can hardly survive on. Striking workers intensified their agitation after their rage often erupts in factory struggles, both small and large scale, like this one at Ricoh Auto in 2009. The strike spread all over the globe and brought the production lines at General Motors and Ford in the U.S. to a halt. Necessary parts from India were missing. Upon India as an investment hub. For 17 years, the Faridabad Workers' News has been published here. The newspaper creates a proletarian public sphere in the region and aims at supporting the self-organization of wage workers. पिछले वर्ष अक्टूबर में वेट शॉप में 20 शिफ्ट में रात 11:30 बजे पर एक साहब ने मजदूर की लात मारी. पिछले रोज का ए शिफ्ट में लात मारने वाले के विरोध में मजदूर ने सुबह 9 बजे काम बंद कर दिया. लात मारने वाला साहब ने मजदूर के सामने माफी मांगी. तब 2 बजे काम शुरू हुआ. बी शिफ्ट ने मजदूरी ने भी काम बंद कर दिया. काम की फिर माफी मांगी. तब रात 7:15 बजे काम शुरू किया. फैक्ट्री में एक दिन काम बंद करने पर 8 करोड़ रुपए का उत्पादन की हानि हुई. The automotive industry with its suppliers forms the motor of economic development in this region. More and more industrial zones are built from scratch, straight from the drawing board. Here in Manesar, the main producers are Maruti Suzuki and mainline suppliers like Bosch. There are many small suppliers for the motor industry in Faridabad. One backyard sweatshop stands back to back with the next. People perform dangerous work on antiquated machines. In the slums, whole families produce small parts for the industry. Plastic products.
और गांव में नौकरी मिलना प्लम्बर वहाँ पर काम ढीला पड़ने की वजह से आना पड़ा बाहर। ऐसा है कि गांव में जब देखभाल करने वाले हैं हाँ तो हम सोचे बेरोजगारी में यहाँ क्यों बैठेंगे, चलते हैं बाहर, फिर यहाँ पर आ गए अपना ड्यूटी कर रहे हैं। क्या करें, वो वहाँ भी छोटा शहर है जिसमें मिस्त्री इतना ज़्यादा हो गया प्लम्बर का, वहाँ काम एडजस्ट नहीं हो पाता था। काम न मिलने की वजह से हमें आना पड़ा, नहीं तो हम वही अपना गुजारा कर लो। आप एक बार आपका काम दिखा सकते हैं, आप क्या करते हैं हैंड प्रेस में? जानते हैं ये माल कहाँ जाते हैं? इसके बाद आप काम करते हैं, इसके बाद ट्रक ये माल लेते हैं और कहाँ जाते हैं? हमारा काम है बस माल निकालना और मालिक को हवाले करना। अच्छा, लेकिन ये क्या हो सकते हैं? गाड़ी मारुति के लिए ना, तो आप मारुति सुजुकी में काम करते हैं, लेकिन स्थायी मजदूर मारुति सुजुकी में तो 30,000 मिलता है और आप मारुति के लिए काम करते हैं। क्या करें, उसका फीस तैयार करके दे रहे हैं। हाँ। अब हम लोग नहीं तैयार करेंगे तो मारुति बनेगी कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच बात सच बात। The small parts produced in such wretched conditions end up in the modern plants of big corporations. This means that the informal sector is not outside the industry, but is organized through the transport and supply chains by the assembly plants themselves. The motorway serves as an extended workbench which transports parts to their next production step. In this way, development and underdevelopment are combined. They are mutually dependent. आपका उम्र कितना है? मेरी है 17 साल। 17 साल। लेकिन मेरी मजबूरी थी और मैं झूठ बोल के भी लगी कि मतलब अब मेरे घर में इतनी मजबूरी है कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ, मेरी दीदी है, मेरे पापा मतलब है पर वो घुटनों से परेशान है, वो कर नहीं सकते काम। मेरे से छोटा एक भाई है, उसको मैं ही हम ही सब पढ़ा रहे हैं काम करके, मैं और मेरी दीदी। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मेरी उम्र ना 19 साल है, तब उसने मेरे को काम पे लिया, वरना वो मेरे को काम पे नहीं लिया। तो पहली नौकरी कारखाना में था? हाँ, ये 257 है, राजनीति स्पोर्ट है, उसी में काम सीखा हूँ। सिलाई खाना का काम तो 2 साल गांव में सीखा, 2 साल सीखने के बाद यहाँ भी सीखना पड़ा। हाँ, तो 13 साल आप सिलाई खाना के? मैं 12 साल उम्र। 12 साल आप सिलाई खाना की सीखना की शुरू की? हाँ। पहले शायद 2-3 महीने वो टेस्टिंग है ना, टेस्ट पीरियड है, वो बहुत काम किया है। हाँ, कितने घंटे काम? 6 महीने लगातार। 6 महीने? 9 बजे सुबह से रात 1 बजे तक। 1 बजे तक कोई छुट्टी नहीं है? काम किया, हाँ, कोई छुट्टी नहीं। उससे चलते दिक्कत आ गई, सांस की दिक्कत आ गई, तो उसका इलाज करे हुए 1 साल चला। आप क्या काम करते हैं? ऑपरेटर का काम। ऑपरेटर। आप पूरे शर्ट बनाते हो? एक भाग? एक भाग। हाँ, आप कब से ये कारखाना में काम करते हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीना। हाँ हाँ।
तो इससे पहले आप कहाँ काम करते? इससे पहले मैं उसमें काम करती थी, ब्राउन में। हाँ, ब्राउन में। तो वो क्या बनाते हैं ब्राउन? दवाई बनाते हैं। दवाइयाँ बनाते हैं। तो आप ये दूसरा कारखाना वो दवा बनाता है, आप ये नौकरी छोड़ दिया ना? हाँ, क्यों? तो छोड़ दिया, ज़्यादा पैसे नहीं देते, मतलब कितने? 25 रुपए देते थे और उसमें इतना काम लेते थे, इतना काम, बहुत हड्डी चूर हो जाती थी, इतना काम लेते थे। और फिर दवाइयाँ से मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मतलब ऐसा लगता था जैसे घुटन सी होती है वहाँ पे। तो आप कितना वेतन मिलते हैं कारखाने में महीना? 8 घंटे का है तो 4200। 4200। तो ये वेतन आपका परिवार के लिए है और आप थोड़ा सा पैसा अपने के लिए रख सकते हैं और ये पूरा परिवार के लिए है? मैं तो दे देती हूँ, पूरा परिवार को ही दे देती हूँ, अपने लिए बस थोड़ा बहुत 400-500 रुपये बस। हाँ, 400-500। हाँ, बाकी दे देती हूँ। अच्छा, तो आप 5-6 जब मिलते हैं, आपका खर्च क्या है? दो किराया है 850 रुपये। 850, लेकिन अब दोनों वो साथ रहते हैं। 3 है, 850 रुपये बिजली बिल अलग है। अच्छा, तो 900 रुपये पड़ जाता है आपके लिए। 300 है किराया के लिए। तो खाना के लिए मतलब 2000-2200 में महीने मिलेगा। 2000 रुपये जो जैसे दारू पीता है, सिगरेट पीता है, उसका तो खर्चा जितना उड़ा दे उसको। अब मैं एक साधारण से रहता हूँ तो मैं 2000 उड़ा देता हूँ, खर्च हो जाता है महीने। ठीक है। तो इसके अलावा भी इलाज के लिए? हाँ, डॉक्टर को देना, अगर बीमार पड़ गए तो पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, डॉक्टर को पता ही नहीं ना क्या लेंगे। लेकिन आमतौर पे महीने में आप कितना पैसा बच सकते हैं? लगभग 3000। अगर वो 6000 कमाता है तो 3500 बचा लेगा। अगर कोई 4000 कमाता है तो 2000 बचाएगा, यही बचा। और कोई 20000 कमाता है तो उसका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, उसकी बात अलग है। तो आप गाँव तो थोड़ा सा पैसा वापस बेच देते हैं? और हाँ, गाँव देना पड़ता है माँ बाप को। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, दिल्ली से। अच्छा, यहाँ गुड़गांव में काम करने आया हूँ। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे काम की, वहाँ पे भी काफ़ी तंगी है, आबादी इतनी हो रही है कि काम रोज़गार कम पड़ रहा है। हाँ, इसलिए परेशान हूँ, मतलब वहाँ पे भी घर अपना, मतलब यहाँ कमरे पे रहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। अच्छा, काम के लिए। कितने घंटे दिन में काम दिन में 8 घंटे। हाँ। और उसके बाद ओवर टाइम। हाँ। 12 बजे तक रात के। हाँ। पूरी नाइट भी लग सकती है, फुल नाइट। अच्छा। या 4 घंटे डेली ओवर टाइम। अच्छा, वही सिंगल ओवर टाइम। हाँ, सिंगल, आमतौर पे सिंगल है। हाँ, सिंगल। अच्छा। ज़्यादातर सिंगल, या किसी में 2 घंटे डबल दे देती है बस। अच्छा, बस ओनली 2 घंटे। तो 12 घंटे काम करना तो आम है। 12 घंटे तो आम है, सबके लिए आम है, चाहे कोई भी हो, हेल्पर हो कोई भी, सबके लिए आम है 12 घंटे काम। महीने में तो तनख्वाह कितने है? वो आमतौर पे वो 6-7 हज़ार रुपये पड़ जाती है। अच्छा। मतलब ओवर टाइम लगा के सब कुछ करके। कुशल मजदूरों के लिए। हाँ। और हेल्पर का भी मतलब वही है 3.5। 3.5। हाँ, 3800, मतलब ऐसे ही सैलरी है। वो भी पूरी नाइट मतलब दिन ओवर टाइम लगा के सब वही 5-5.5। ये कारखाने के अंदर और लोग ने बिहारी से, दूसरे इलाके से है, तो इससे तो कोई दिक्कत है? और तो लोगों के बीच कोई तनाव है? और नहीं, लोगों के बीच कोई तनाव नहीं है। सब मिलजुल के काम करते हैं। अच्छा, भाइयों की तरह मिलके रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ सब मिलजुल के रह लेते हैं। मगर यही है, थोड़ा कंपनियों में मतलब जाति ज़्यादा होती है, मतलब काम या पैसा, मतलब सही, मतलब जो जायज़ मिलता है ना पैसा, वो तरीका नहीं है। हाँ यार। बांग्लादेश में फिर मजदूरों का गुस्सा बहुत बड़ा है। बांग्लादेश में मर्यादा बेहतरीन एक कारखाने के बकाया ताका वेतन वृद्धि और नौकरी के पहले बार विवाद के 27 जून इंसाफ करना करोलिया कुछ संसदीय पिटाई। पुलिस ने मजदूरों को फिर पिटापिट किया और फिर आंखों में गैस की गोलियां छोड़ी। मजदूर रास्ते में नाराज गए और बंद
कर दिया। पुलिस के सहायक पाल की गोलियां चलाई और एक मजदूर की मृत्यु हो गई। फैक्ट्रियों के मजदूर सरकार पर निकल गए और ढाका के केसर में अधिकतर मजदूर सरकारों पर पार लगा दी। कुछ फैक्ट्रियों का काम जारी है। मजदूर का आक्रमण का निशाना बना दिया। 50 कारखानों में आग लगा दी गई और 50 गाँव में बन गई थी। तो 16 घंटे काम करने के बाद तो क्या महसूस करते हैं शरीर, मन, आत्मा? सेम सी बात है। अब जब मेहनत करेंगे 16 घंटे तो बिस्तर पे आते आते सो जाएंगे। या खाना क्या करना है, जो कुछ मिला वो खा लिया, पानी वानी जो कुछ मिला गर्म ठंडा वैसा पी के करके खा लिया, सो गए। फिर उसके बाद में थकान महसूस होता है तो जा करके दवाई ले लिया शरीर दर्द की, या फिर गए ड्यूटी। जाने के बाद में ड्यूटी नहीं जाओगे तो फिर वो निकाल देगा। फिर उसके बाद में अगर समय से पहुँच गया तो उसको ड्यूटी पे एंट्री कर लेंगे और उसको काम कराएंगे। फिर और काम जब कराएंगे ना तो ये ऐसा होता है कि हम कंपनी में कल 2 बजे तक रात नाइट में काम किए और हमारा शरीर में दर्द है, नहीं काम उतने ही लेंगे। क्या दर्द है, क्या शिकायत है शरीर में? शरीर में जैसे कि अब बैठे बैठे पेट में दर्द बन गया। फिर उसके बाद में मैं गोली लिया, दवाई लिया, दवाई खाने के बाद में मैं कंपनी गया और कंपनी में काम अगर मशीन पे हम बैठ गए और काम हमसे कम हो पा रहा है तो उसको ऐसा गंवारा नहीं है। वो चाहता है कि काम हमको भरपूर मिले। टारगेट लेता है हमसे, टारगेट उतने लेगा जितना हमसे कर लिया था उतने आज लेगा टारगेट, ऐसा करता है। अच्छा, तो पेट के अलावा और कोई शिकायत? और बहुत शिकायत है। पेट के अलावा जैसे कि पानी गंदा संदा पिला देते हैं। अच्छा। पानी स्वच्छ पानी नहीं है तो पानी अगर गंदा है तो उसको पीने से जुकाम होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है और तमाम चीज़ की मतलब तरीके की चीज़ हो जाती है। अंदर जो बीमारियां होती नहीं वो भी हो जाती हैं, ऐसा होता है। और लैट्रिन में मतलब सफाई सुथरा ना होने के कारण वहाँ पे गंदगी होने से कारण वहाँ पे तबीयत की शिकायत हो जाती है। कोई मलेरिया का है तो कोई किस चीज़ का है, ऐसा बीमारी हर चीज़, कोई टीबी हो जाती है किसी के। अब 1-2 बजे तक अगर 300 नाइट महीने में लगाएंगे, सिंपल सी बात है उसके अंदर टीबी हो जाएगी, क्योंकि समय से खाएगा नहीं, समय से सोएगा नहीं, समय से खाना नहीं खाएगा तो टीबी हो जाना है। ऐसा है, ऐसी स्थिति है वहाँ पर। तो आप आराम विश्राम कब मिलते हैं? आराम विश्राम हम ड्यूटी करने के बाद इधर 9 बजे हम ड्यूटी गए सुबह। फिर उसके बाद में 16 घंटे ड्यूटी करके आए। 1 बजे कंपनी से छूटे। वहाँ से आधा घंटा 30 मिनट हमको लगता है रूम तक आने के लिए। फिर वहाँ पे आने के बाद में फिर यहाँ पे सोए नहीं, 4 घंटा हमको या 5 घंटा आप विश्राम करने के लिए आराम। आपका क्या है ये बहुत काम में मेहनत है, कितने साल आप ये और कर सकते हैं? अब हमारे घर की स्थिति जैसी है, हमारे घर में जैसे हमारी फैमिली है और मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में अपना नाम लिखाया है और उसको पढ़ाने के लिए और उसको स्वच्छ रखने के लिए, कपड़े बदन पे रखने के लिए तो हमको ड्यूटी करना पड़ेगा, चाहे हमको जितनी परेशानी हो। फिर भी मर जाएंगे लेकिन ड्यूटी करेंगे, ऐसा है। अब मतलब दूसरों के लिए, अपने मम्मी पापा की गरीबी के लिए, खाने के लिए उनको पैसा देंगे और वो खरीद के खाएंगे, इसलिए ड्यूटी करना पड़ता है। हाँ, ये हमारे सोच है, लेकिन हमारे शरीर क्या बोल रहा है? शरीर तो नहीं साथ दे रहा है, शरीर नहीं साथ देगा। शरीर कैसे साथ देगा, क्योंकि 16 घंटे इसलिए ड्यूटी ले रहे हैं। ड्यूटी अगर 8 घंटा ड्यूटी करें तो आराम से सुकून से सोएं और सुकून से जा करके ड्यूटी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब सिंपल सी बात है, अब 4000 जैसे कि 4300 सैलरी दे रहा है। हम लोगों का वेतन सैलरी है 4000 मतलब 4300 है। उसमें से अगर हम लोग ओवर टाइम नहीं लगाएं और अगर कंपनी वाला ओवर टाइम नहीं लगाएगा तो ये हो जाएगा कि 4000 में हमारा यहाँ पे 2000 तो सिर्फ रूम का खर्चा और जो लाएंगे खाने के लिए वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2000 में अगर पॉकेट खर्चा हमने 1 महीने का 500 रुपये निकाला तो नहीं 1000-1500 रुपये बचेगा, वो फैमिली में कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ओवर टाइम लालच में मतलब लगाते हैं कि अगर लालच में लगा लेंगे तो 2000 ज़्यादा प्लस मिल जाएगा तो हमारा घर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, इसलिए। और उनके भी ज़माने में ये हाल रहा।
जब आजकल तो जहाँ ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है वहाँ काम ही नहीं करने लायक होता। अब 40 साल के बाद मुझे सिलाई थोड़ी दिखाई देगी, मैं अंधा हो जाऊँगा। धागे नहीं दिखाई देते ना, बहुत बारीकी से काम करना होता है। तो उसके बाद मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या करूँगा, देखा जाएगा। कुछ लोग तो गाँव जाके खेती किसानी करते हैं, कुछ रोड पर भुट्टा बेचते हैं, घर को पल्ला करते हैं, मजदूरी गाँव में। यहाँ भी मजदूरी वहाँ है। अच्छा, In order to reduce working conditions to their current state, the misery in rural areas is essential, as are demoralized workers. The roots of this dejection can be followed back to 1979, when a general strike in Faridabad was ended by firing on the protesters. This was the starting point of a profound process of reorganization, leading to automation and precarious conditions of employment. तो एक और शायद आपका नाम क्या है? जवाहरलाल। तो आप फरीदाबाद में कब आए? 1970। हाँ, और पहली नौकरी उसके बाद हम उस कारखाने से निकाल दिए गए। उसके बाद हम एटक में CPI में होल टाइमर थे। फिर वहाँ होल टाइमर से हम हटे, फिर CPM में होल टाइमर थे। उसके बाद हम जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसमें काम कर रहे थे। और 1979 में हम लोग संघर्ष समिति बनाए थे। वो संघर्ष समिति के जरिए काम कर रहे थे और पूरे फरीदाबाद को बंद भी किए थे 1979 में। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। 1979 में जो हम लोग बंद किए थे उसमें यहाँ फरीदाबाद में गोली चली थी, जिसमें काफ़ी मजदूर मारे गए। और उस समय भजन लाल जो कांग्रेसी गवर्नमेंट थी और उन्होंने ही गोलियां चलाई थी। और वही अभी तक ये नीलम चौक जो है वहीं गोलियां चली थी, जिस चौक को आजकल शहीद चौक नाम से पुकारा जाता है। हाँ, शहीद चौक, वहाँ पर मजदूर शहीद हुए थे। और उसमें गिनती सही नहीं थी। इस तरह से गवर्नमेंट का ये था कि 17 आदमी मरे हैं और उसमें मजदूरों ने भी लड़ा। वो उन समय थानेदार था, उसको भी मारे थे, उसका पिस्टल भी छीन लिए थे और भी पुलिस को मारे थे। और आपका ख्याल से कितने लोग मारे गए? आपका ख्याल से कितने लोग मर गए इसमें? उसमें इस तरह से मजदूरों का ये कहना था कि 150-200 आदमी वहाँ मारे गए, लेकिन सरकार वो लाशों को गायब कर दी। और चूंकि काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई थी इसलिए डर कर फिर काफ़ी दिन तक संघर्ष थोड़ा डाउन हो गया और इस चीज़ का पता नहीं लग सका कि कौन कौन आदमी का लाश गायब है इनमें। उसके बाद थोड़ा मजदूरों का मूवमेंट कम होता गया और कंपनियों में ऑटोमेशन शुरू हुआ और मजदूरों की संख्या कम होते गई और बहुत से छटनी हुए, बहुत से कारखाने बंद हो गए क्योंकि टेक्सटाइल के कारखाने बहुत ज़्यादा बंद हो गए और इस तरह से बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई। और जो ये कंप्यूटर का काम भी शुरू हुआ, इसमें भी बहुत से मजदूर बेरोजगार हुए और बहुत से कारखाने बंद हो गए। इस वजह से बेरोजगारी के कारण बहुत से जो मजदूर बेरोजगार हो गए और गांव को चले गए और कारखाने में ठेकेदारी शुरू हो गई, जिससे मूवमेंट पीछे हो और जो परमानेंट सर्विस है वो ख़त्म होती गई। कॉन्ट्रैक्टरशिप पर नौकरी करने लगे तो उनका कोई मतलब संघर्ष का वो
जो माइंड है, समझ है, वो नहीं रहा। क्योंकि वो उनके दिमाग में है कि हमारा तो न लीगल राइट है और न किसी प्रकार का राइट है कि हम अपने लिए लड़ सकें, इसलिए वो कभी इस बात का वो नहीं करते थे। हाँ, तो परमानेंट वर्कर ही लड़ पा रहे हैं। और परमानेंट वर्कर चूंकि ये देख रहे हैं कि अब ठेकेदारी में भी नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए उनकी मिलिटेंसी कम हुई है। There have been several attacks on core workforces since the movement in Faridabad was successfully cowed. In 2000, the most highly paid workforce in India became a target: the salaried workers at Maruti Suzuki. The company managed to replace 2,000 of 5,800 contract workers with temp workers. 4 years later, the target were workers at Honda HMSI. After various conflicts, they were invited to a meeting by government representatives. This is what happened when they arrived at the venue. There were 800 wounded. 67 workers were charged with attempted murder. All workers in the region had been taught a lesson. लेकिन उदाहरण के लिए आप तो इतना वक्त से इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लोग तो एक बार हड़ताल किया स्वयं खुद? नहीं होता कुछ नहीं है ना। हड़ताल करने से क्या होगा? हड़ताल जिस कंपनी में करेंगे सारे लोगों को भगा देंगे, दूसरा भर्ती कर लेंगे। और वर्कर्स को पैसे में घपला करते हैं। वर्कर कुछ बोले तो वर्कर को धमका देते हैं। पुलिस वाले हैं या कानून है या अदालत है तो वो पैसे वाले की देखते हैं, गरीबों की तो सुनता नहीं कोई। तो गरीब बेचारे कैसे लोहा लेगा अमीर आदमी से? ये प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ होता है तो कंप्लेन आगे करते हैं, आगे कंप्लेन किए, कुछ कानून कार्रवाई हुआ, उसके बाद कंपनी वालों ने उसे पैसे देके दबा दिया और फिर वो वहीं का वहीं जैसा का तैसा हो गया, रह गया। फिर जैसे के तैसे मामला हम लोग का फिर वैसे ही रह जाता है। यानी हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम कुछ अपना कदम उठाते भी हैं सोच के, तो वो कदम उठाने से पहले वो कदम तोड़ दिया जाएगा, तो इस सोच करके हम लोग नहीं उठा पाते हैं। दूर से आए हैं, 4,000 का काम किया, आपस 3,000 रुपये रूम भाड़ा लाला ताला का, अगर कदम उठाते हैं तो वो पैसे फंस जाएगा। बाद में पता चला कि ताला लग गया रूम में, घर जाने के लिए भाड़ा नहीं। लेकिन उदाहरण के लिए इस मकान में बहुत पड़ोसियाँ हैं और सब लोग तो मजदूर हैं, तो आपसे में आप लोग तो ये स्थिति के बारे में बातचीत करते हैं पड़ोसियों के साथ? बात करते हैं हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो करते हैं, मगर वो उसका कहना है कि हमारा साथ कौन देगा। अगर हम यहाँ अगर बोलते हैं आपस में, तो आपस में बोलने से कुछ नहीं होता। हमारा आगे मजबूत होना चाहिए। जो हम अगर कोई परेशानी हो, हम मान के चलो 4 गए, वहाँ गए 4 क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा अगर आगे से पकड़ हो तो हम फिर उन आगे से उसको पकड़ सकते हैं। ऐसा कुछ है। बहुत से कंपनी वाले गुंडे टाइप के लोगों को भी रखते हैं, तो जो गुंडे टाइप के हैं, जो ज़्यादा बोला उसको पिटाई होती है, पिटाई कर देते हैं उनको, रास्ते में पिटाई कर देते हैं, कंपनी के अंदर पिटाई कर देते हैं, मोहल्ले में पिटाई कर देते हैं, मार्केट में पिटाई। ऐसे दबंग टाइप के गुंडे टाइप के लोग रखते हैं। स्थिति बेहतर करने के लिए, सुधार
हो जाने के लिए हम तो क्या कर सकते हैं? और कोई सुझाव है? करने के लिए तो यूनियन बनानी पड़ती है या मेंबरशिप में मतलब वो करना पड़ता है। जब भी मतलब कंप्लेंट करो भाई हमारी कंपनी में ये जात हो रही है हमारे साथ, तो वही मतलब करती है। लेकिन अगर हम तो शिकायत करते हैं, उदाहरण के लिए हम तो न्यूनतम कोई नहीं सुनता, कोई यहाँ की सरकार नहीं सुनती। यहाँ का सरकार खाऊ है सारा सरकार। तो लेकिन कभी कभार तो एलसी है तो लेबर कमिश्नर, तो अगर हम तो शिकायत करते हैं, लेबर कमिश्नर जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बिक जाते हैं। कंपनी खरीद कर लेता है, कंपनी खरीद लेती है। अगर कोई वर्कर शिकायत करता है तो पहले ही फोन कर देवे तुम्हारी कंपनी से कोई वर्कर आया था हमारे पास कंप्लेंट लेके, वो नौकरी से तो उस वर्कर की तो छुट्टी हो ही जाती है। बिल्कुल, और कुछ नहीं होता। तो ये उसको भी हटाओ, दूसरे को भी अगर कोई और बोलता है उसे ही भगा देता है। तो हमारे लिए ये कोई रास्ता नहीं है। हमारी कोई पक्की नौकरी नहीं है। जब तक काम कर रहे हैं, अगर बोला तो मुंह खोला ताला खोला, सीधा बाहर नौकरी बाहर। अगर बोलेंगे तो बाहर है। जब तक काम कर रहे हैं चुपचाप तो काम करो, स्टॉप। अगर मिसाल लीजिए, अगर मैं तो कुशल न सिलाई कारीगरी है, तो कितना वक्त हो सकता है नौकरी मिलने के लिए? तो 1 महीना 2 महीना कितना टाइम लगेगा? मतलब जब तक काम कर रहे हो करो, जब काम नहीं है घर जाओ, हटा देता है, हटा भी देता है। काम है तो दिन रात करो, महीना दिन 2 महीना 4 महीना जब तक काम चल रहा है बाकी अपना रिजाइन पर में पहले ही साइन करवा लेता है ना, वो जो रिजाइन पेपर होता है ना, पेपर में पहले ही साइन करवा बोलो ना कि जब पेपर भरता है तो पहले ही साइन करा लेता है, कभी भी किसी टाइम भी निकाल सकता है। ज्वाइनिंग के ही टाइम में जो है ना पहले ही पेपर पे ये है कि कभी भी किसी टाइम भी निकाल सकता है। आदमी जो है कि वो जो ये नहीं है कि तुम्हें 4 साल पुराने हो गए तो कभी भी निकाल सकता है, नहीं टाइम उसी टाइम साइन करा लेता साथ में कई कंपनियां बदलते हैं। ऐसे कदमों की चर्चा काफ़ी होती है जो आज सामान्य मजदूर के बस का नहीं है, इसीलिए होता बहुत ही कम है। इसका साम दुष्परिणाम हमारे द्वारा स्वयं के दोषों देने वाले बिलाप करना है। न नो मन तेल होगा न नादार नाचेगी वाली अदालत निकलना प्रारंभिक महत्व है। कदम तय करते समय एक ध्यान में रखना जरूरी है कि हर एक मजबूरियों से गिरा है। फर्क मात्र यह है कि किसी की थोड़ी ज़्यादा मजबूरी है तो किसी की थोड़ी कम मजबूरी है। एक दूसरे को पीड़ित मानकर सह पीड़ित मान कर चलना आवश्यक लगता है। कदम स्वयं में बहुत सी ही मामूली सी है। तिनका सामान तिनके से बनाया गया घोंसला सुरक्षित का मजबूत कवच बनाता है और हर चिड़िया आसानी से तिनका ओटा जोड़ सकती है। Notwithstanding their extremely difficult circumstances, the workers are always looking for a way out. In these struggles, the workers often refrain from presenting official leaders and delegates in order to be less vulnerable. One example are the salaried metal workers of Michael Aram. They produce craft work for the U.S. market. इसलिए शुरू किया हम लोगों को कमजोरी महसूस होने लगी, एक एक करके निकालता था। कभी हम लोग काम करता था, कभी इसको गेट बाहर कर दिया, कोई उसको गेट बाहर कर दिया। ले एकता बनाने के लिए मीटिंग किया हूँ। ये एकता रहेगी तो अगर कुछ करेगा तो सारे लोग करूँगा, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मीटिंग किया हूँ। तो 2005 अब तो नौकरी से निकाल देते थे? हाँ, 2005 में ना हम लगन 2005 में और 2006 25 जनवरी को रखा है। तो इसके बीच क्या हुआ? तो आप तो गत्ते लगाया था, गत्ते लगाया था, उसके मतलब
लिख के उसके खिलाफ भी नहीं, मतलब ऐसा लिखाता था उसके ऊपर कहानी जाके उसको बदला लगे। साइडिंग पे जंतर मंतर IPO हर एक जगह। कनॉट प्लेस में भी? हाँ, कनॉट प्लेस में, सुजान सिंह पार्क, इसमें नेहरू प्लेस में भी हर एक जगह। हमें तो आम वर्कर को अपने साथ करना था, बताना था कि हमारे साथ ये हो रहा है और ये कंपनी हमारे साथ ऐसा कर रही है, यही बताना था। और ये गठे भी अमेरिका में माइकल आराम के दुकान के सामने तो भी था ये गठे, तो कोई दोस्त अमेरिका में भी कोई समर्थन किया, तो ये कितने असर पड़ते थे? उसका असर तो सबसे ज़्यादा वहीं हमने यहाँ लगाया, यहाँ की लोगों को बताया। वहाँ जो चूँकि हमारी कंपनी का पूरा माल वहीं बिकता है और वहाँ पे इस तरह की समस्या जब पेपर बांटे गए थे तो वो पेपर जो लोग भी पढ़े, जैसे जो हमारे कंपनी का रिटेलर लोग जो हैं, रिटेलर जो माल खरीदते हैं, उन लोगों को जब पता चला तब उन लोगों ने मतलब दबाव बनाया था, तो वहाँ का ज़्यादा असर पड़ा। हमारा साथ दिया, दबाव वहाँ से बनाया माइकल के ऊपर, तब माइकल आकर के हम लोगों से यहाँ समझौता किया। लेकिन गठे से पहले आप तो भी इनटू ये कोई यूनियन में तो इफ्टू, हाँ, तो इसमें वो खिलाफ हो गया था हम लोगों अनुभव कैसे हुआ? यूनियन के साथ आपके अनुभव कैसे हुआ? ये क्या यूनियन के अनुभव वाली ये बात है कि मतलब जैसे निकाल देगा तो शायद ही हमें रखवा देगा, इसलिए हमें अनुभव था। और फिर ये यूनियन हमारे को थोड़ा गलत लगता है कि हमेशा वो मालिक से ही बुलवाती है, नाराबाजी करवाओ, इसमें हाई हाई करवाओ, तो वो बेकार लगता है। वो अपना स्वार्थ ही देखा करते हैं। मालिक के साथ? मालिक का हर एक कंपनी में, जैसे आज यहाँ बंदा निकाला गया उसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, स्वार्थी होते ज़्यादा लीडर लोग, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो। अब ये गत्ता लगाता था क्या, लीडर तो खिलाफ हो ही गया था जो अनिमेश दास। तो यूनियन गट्टे लगाना की विरोध था? हाँ। क्यों? कह रहे या तो मेरा नाम डालो इफ्टू, यानी जो भी लिखो उसमें उसका मार्का लगाओ यूनियन का, हाँ वो झंडा लगाओ, झंडा भी लेकर चलो सकता। वो अपने नाम के लिए अपना उनका नाम हो जाता है सारे विश्व में, अपना उनका नाम, सारे विश्व में हम लोगों का नाम हुआ, वैसे उनका भी नाम वहाँ तक हो जाता है, इसलिए ज़्यादा वो चीज़ कर रहे थे कि मेरा नाम क्यों नहीं आया इफ्टू। तो इसके बाद तो ये मीटिंग और ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हाँ, ये मीटिंग तो हम लोग की हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। मीटिंग को ये 8-9 साल हो गया, हर हफ्ते हम लोग मीटिंग करते हैं संडे को। तो इसमें ये है कि हम हफ्ते भर जो भी अपना काम धाम करते हैं और जो भी हमारे साथ घटित होता है उस पर हम यहाँ विचार विमर्श करते हैं और उसका हल कैसे निकाला जाए इसकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं आपस में, और फिर उसके हिसाब से ही हम अपना काम करते हैं। तो मीटिंग तो हमारे लिए हर हालत में अच्छी है, ये ज़रूरी है। अब उससे हमारे में कोई कमज़ोर ना पड़ जाए, कोई लड़का कमज़ोर ना हो मैनेजमेंट के सामने या काम के मामले में, इसलिए ये ज़रूरी होता है। हाँ, एक साथ बैठने पर विचार विमर्श होता है तो सब ऐसा लगता है कि हम भाईचारा हम लोगों में बना रहता है। क्या कंपनी कोशिश की आप लोगों में कोई नेता मिलना? तो आमतौर पे अगर कोई नेता है हम शायद थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं और थोड़ा कर सकते हैं, बार बार ये कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है, यूनियन जहाँ भी होती है उस सबसे बड़ा खतरा यही होता है। जब भी वो बात किए हम यही कहते हैं कि हमारे में सब लीडर हैं, जिससे आप चाहो बात कर सकते हो। तो हमारे में कोई लीडर नहीं था, इसलिए उनके लिए समस्या ये है कि जब कोई लीडर नहीं है यानी हर मजदूर से बात करने उनको पड़ेगी। जब भी हमारी मीटिंग हुई, माइकल साहब भी जब हम लोगों की जनवरी में जब माइकल साहब आए थे 2006 में, तो 2-3 मीटिंग हुई, लेकिन आमतौर पर पहले उनकी कोशिश यही रहती कि 2-4-5 आदमी आओ, लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं कि 2-4-5, जो बात होगी सबके सामने होगी। तो हम लोग सब लोग मिल कर के बात किए थे और
अब 4 आदमी 5 आदमी जा रहे हैं बात करने के लिए, उनको कुछ पैसा दे करके अपनी मनमानी तरीके से अगर वो समझौता कर लेता है तो हमें मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या। वो बार बार चाहते हैं कि ये लीडर चुन लें और लीडर के माध्यम से बात करें, और लीडर को पैसे से खरीद कर, धमका करके, मार करके, जैसे भी ये डरा करके अपनी मनमानी समझौता कराने की कोशिश करें। अब 50 आदमी हैं, कोई लीडर नहीं है, तो 50 आदमी को क्या डराएंगे, धमकाएंगे? एक बंदे को 8 महीने निकाल रखा, 3 महीने से हो गया कि झूठे आरोप देके कि वो सुपरवाइजर को हाथापाई किया, अभी तक बाहर कर रखा है। हम लोगों का 2 बस थी, 1 बस में कर दिया उतने बंदे। मैं इन लड़कों के साथ जुड़ गया जब ये लोग लड़ाई लड़े, जब ये लोग सक्सेसफुल हो गए, तब फिर मैं इनके साथ जुड़ गया कि इन्हीं के साथ हम लोग भी सही रहेंगे। कंपनी में मैनेजमेंट लड़कों पर दबाव डाल के काम कराता है, सब कराता है, पर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपने कानून के साथ चलते थे और इसीलिए हम इनसे जुड़ गए। इनसे जुड़ने के गुस्से में आके हमें वो इल्ज़ाम लगा के बाहर कर दिया कंपनी से। 8 महीने से बाहर हैं। अभी है पावर हमारे को। आप अगर आना चाहो तो हमारे कंपनी आ सकते हो। हाँ, मेटल गलाने का काम करने के लिए। नहीं, फोटो शूटिंग के लिए। फोटो लेकिन वो इंक कर देते हैं ना, हम अंदर नहीं जा सकते। गेट के बाहर। गेट के बाहर आपको थोड़ा सा, ताकि कंपनी को लगेगा बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ, लंच टाइम में। लंच टाइम में या तो 9 बजे आ जाओ सुबह, कुछ ना करेंगे लेकिन हेल्प हम लोगों को बहुत मिलेगा। ये जो है ना इनसे गाड़ी कुछ ये कर रहे हैं इनके बारे में, गाड़ी जैसे उतरेंगे वो वाला सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कितने बजे? 1 बजे लंच। 1 बजे आ जाओ। 1 बजे लंच में। सुबह नहीं सही, सुबह सही रहेगा। घर में बहुत हालत खराब। सुबह मान लो जैसे बस तुम्हारे यहाँ से लेट पहुँची तो तुम अंदर जाओगे। लंच में ज़्यादा गर्मी ना है। उदाहरण के लिए यूनिस टाइम में तो भी कभी कभार लोग तो बोलते हैं हाँ ये फीस रेट ज़्यादा कम है, तो हम ज़्यादा चाहते हैं। ये मतलब 7 साल में मुझे पहले ऐसी फैक्ट्री मिली है जहाँ की मशीनें बंद करके काम रोक देते हैं। कोई पीस का 10-20 रुपये बोला तो हम बोलेंगे कम है, तो बोलेगा नहीं बढ़ाएंगे, तो हम लोग काम रोक देंगे। फिर वो 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये ऐसा करके बढ़ा देता है। तो जब हमें लग जाएगा कि हमारा 200-250 रुपये पड़ जाएगा तो हम काम चालू कर देते हैं, हम काम बंद कर देते हैं। अभी एक पीस का रेट 28 रुपये खोला था, आपके एलिजा का 28 रुपये खोला था। तो उसके बाद हमने काम नहीं किया, बंद कर दिया। फिर उसने 32 कर दिया, 32 के बाद 35 किया, 35 में काम नहीं किया, फिर जाकर 37 किया। हाँ, तो लेकिन आप 50 लोगों के बीच तो आप फैसला कैसे किया? हाँ, कल कोई नेता था? कोई नहीं, कोई नेता नहीं था। 50 कारीगर थे, उसमें लंच हुआ 3:30 बजे। सब कारीगर बाहर निकले और आपस में बात की सब ने कि इसका रेट कम है, रेट बढ़वाया है। बोले 3:30 बजे बाद काम बंद कर दो, तो सब अंदर चले गए, काम बंद कर दिया, कोई काम नहीं किया। उसमें जिससे बोला काम करो, उसने बोला रेट बढ़ाओ, इसलिए कोई नेता वाली बात नहीं। कुछ बोलने के लिए तो काफ़ी लोग शायद दिलचस्प लगता है आपका अनुभव। अगर वो कुछ है बोलो तो नहीं ख़त्म। मैं क्या बोलूँ, मेरा जो था बोल दिया मैं। और तो ये कि मजदूर में एकता होना बड़ा हो गई। कभी तो देखा जाएगा, कभी तो 5000 पुराना इतिहास है और इसको ख़त्म करने में काफ़ी दिन लगेगा, तत्काल तो नहीं हो सकता। या तो फिर नेताओं का काम है कि हमको व्यवस्था, हमको अगर सुविधा मिलती है ठीक है, नहीं अगर इनको सबको गोली मारना पड़ा तो गोली मारो, वैसा हम कर नहीं सकते। वो कारखाना के अंदर कोई संगठन है, यूनियन है? यूनियन वो संगठन बोलता है, वो कैसे बोलता है, एकता है वो। अगर कोई एकता है हाँ। ताकि अगर जैसे हमारे ऊपर कोई दबाव डालता है तो हम अकेले नहीं, सारे जने उठ के बोलते हैं। अगर हम पे कोई चिल्लाता है तो हम सारे जने बोलते हैं, तो सब में एकता है।
गोरखपुर में नए संगठन के स्वरूपों, नए संगठन के तरीकों के सवाल दस्तक दे रहा है। गुड़गांव के होंडा सन 20 के ऑटो के चर्चा मामलों के नहीं बल्कि डेल्फी ऑटो ठेकेदार के जरिए 2500 मजदूरों द्वारा उठाए गए कदम। हीरो होंडा गुड़गांव स्थित रेफियर पार्ट्स फैक्ट्री ठेकेदार के जरिए 45,000 मजदूरों द्वारा चाणाचक काम बंद करना। होंडा के ठेकेदार के जरिए रखे 3,000 मजदूर द्वारा मैनेजमेंट यूनियन समझौता के खिलाफ काम बंद करना। ईस्ट मिडकिट के कैजुअल वर्करों द्वारा तनख्वाह में देरी से देना कर काम बंद करना। नई राहें खोजने द्वारा मजदूर जुटे हुए हैं। इन हालात में हमारे सामने प्रश्न है, क्या क्या नहीं करें, क्या क्या करें, कैसे करें। माया बेच के जमीन किन्नी पैली तू बनाई, माया एक किला बेच किन्नी पैली तू बनाई। बड़ी सोहनी लगदी है माया कोठी जेड़ी पाई, माया एक किला बेच किन्नी पैली तू बनाई। बड़ी सोहनी लगदी है जेड़ी कोठी माया पाई। जट्टी दी पकाती तू तां हिंड मित्तरा पे बड़ा सोहना लगदा है। केड़ा दस दे जट्टी नू एह पिंड मित्तरा वे बड़ा सोहना लगदा है। दस दे जट्टी नू एह पिंड मित्तरा वे बड़ा सोहना लगदा है। एह हल कर काने इत्थे वोटां विच खड़दे, एमएलए दियां सीटां रहिंदे इत्थे लड़दे। एह हल कर काने इत्थे वोटां विच खड़दे, एमएलए दियां सीटां रहिंदे इत्थे लड़दे। ताही दा बकाई तेरी हिंड वल्लीए नी इहनू कूम कला कहंदे। सारियां तो वड्डा इह पिंड वल्लीए नी इहनू कूम कला कहंदे। सारियां तो वड्डा इह पिंड वल्लीए नी इहनू कूम कला कहंदे। हॉस्पिटल भी चन्ना जमा कोल वे, एक जट्टी दा बकाता बोल वे। हॉस्पिटल भी चन्ना जमा कोल वे, एक जट्टी दा बकाता बोल वे। सड़क दे उत्ते मैया देख दाना मंडी, सड़क दे उत्ते मैया देख दाना मंडी। सिट्टां दे फसले लगू बिंद मित्तरा वे बड़ा सोहना लगदा है। केड़ा दस दे जट्टी नू एह पिंड मित्तरा वे बड़ा सोहना लगदा है। लग पे रहन तेरी शैल भी कराऊंगा, सारे पिंड उत्तों तेरा गेड़ा भी लवाऊंगा। लग पे रहन तेरी शैल भी कराऊंगा, सारे पिंड उत्तों तेरा गेड़ा भी लवाऊंगा। पंडितां दे होटल च प्याऊं तैनू ठंडे, पंडितां दे होटल च प्याऊं तैनू ठंडे। जाना वाद राहे टैंपू आउंदे बिंद बिंद वल्लीए नी इहनू कूम कला कहंदे। सारियां तो वड्डा ए पिंड वल्लीए नी इहनू कूम कला कहंदे। चढ़ के कोठी ते रही सीगी निगाह मारवे, बड़े सोहणे लगदे ने टावरे ने चार वे। चढ़ के कोठी ते रही सीगी निगाह मारवे, बड़े सोहणे लगदे ने टावरे ने चार वे। पंडितां दे होटल च प्याऊं तैनू ठंडे, पंडितां दे होटल च प्याऊं तैनू ठंडे। जाना वाद राहे टैंपू आउंदे बिंद बिंद वल्लीए नी इहनू कूम कला कहंदे। सारियां तो वड्डा ए पिंड वल्लीए नी इहनू कूम कला कहंदे। चढ़ के कोठी ते रही सीगी निगाह मारवे, बड़े सोहणे लगदे ने टावरे ने चार वे। चढ़ के कोठी ते रही सीगी निगाह मारवे, बड़े सोहणे लगदे ने टावरे ने चार वे। बापू दे पीणे नू ठेका दारू वाला कोले, बापू दे पीणे नू ठेका दारू वाला कोले। पट्टनी नी पैनी एक डिंग मित्तरा वे बड़ा सोहना लगदा ए। दस दे जट्टी नू